May I request our speakers for today, Javed Akhtar ji and Shabana Azmi ji, to please. And Swati Dog, please. A big round of applause, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to welcome you at the Kolkata Literary Meet this afternoon at the historical Victoria Memorial. We are indeed grateful to Javed Akhtar ji and Shabana ji to be present here with us. The Kolkata Literary Meet has been a great treat for all Kolkatans, and our organization SRAI, which is celebrating 25 years, is really proud to be associated with this event for the second consecutive year. We have two great luminaries with us this afternoon, Javed ji and Shabana ji. In fact, I have been personally a very great fan of both of them. And I would like to say, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ for both of you this afternoon before we start, कि गुलशन में सबा की जुस्तजू तेरी है और बुलबुल के ज़ुबां में गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का और जिस फूल को सूंघता हूँ खुशबू तेरी है. Thank you so much for being with us. आपके, it has to be yours. So we start. आदाब, ख़वातीनो हज़रात, देवियों सज्जनों, ladies and gentlemen, you're all assembled here. मौसम है आशिकाना और दिल उन्हें ढूंढ के ले आया है दोनों को. इनकी खूबसूरती को एक ज़माने से हम देखते थे, इनके कलाम को एक ज़माने से हमने अपने दिल को जीतते देखा. उनके हुनर को ऊपर वाले ने फ़न और हुनर से उन्हें इतना बख्शा, इतना नवाजा कि आज दोनों को साथ देखकर यूँ समझ नहीं आता कि क्या कहें. फिर भी इजाज़त चाहूँगी. Even though the session is about poetry across translations, across languages actually, शुरुआत करना चाहूँगी इन्हीं के कुछ लफ्ज़ों से. इजाज़त है जावेद साहब? हाँ, बहुत आसान है पहचान इसकी, बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है. इतनी सादगी से, with such simplicity, इस फ़लसफ़े को आप किस तरह इस सादगी में लपेट लेते हैं? How do you do it? कैसे मुमकिन है ये? बताएं ज़रा. Well, good evening, ladies and gentlemen. In last 2 minutes, I have heard so much of Urdu that I am thinking to migrate to some other language. And it came from very unexpected quarters. In Calcutta. जी जी. चलिए ठीक है. My father had once told me that it is very easy to write in difficult language, and it is very difficult to write in easy language. Because when you are using huge bombastic words, these words have been used by many so-called intellectuals or great writers or thinkers or scholars and so on. And they have been rolled from the hill of the time and have collected a lot of moss. So sometimes when you use these words convey which you did not even mean. But on the other side, if you are using transparent language, your meaning will be seen clearly. And you can only afford to use transparent language if you are sure of your idea.
Now, how do you use transparent language or simple language? It's like entering a room which is dark and you don't know where the switchboard. So since you don't know where the switchboard, you will feel the whole wall and ultimately reach the switch. But if you know exactly where is the switch, so with one finger you can push the switch and put the light on. You can only be precise if you are very, very clear about the idea. So that is the way we can achieve simplicity in language, and that is desirable because ultimately we write to communicate. If I use a language or metaphor which is not communicating, I can't say I don't care if nobody understands. Maybe some people don't, but I do. So when I am writing, I am extremely conscious that as long as I can help it, I should use language without, at the cost of the idea, which will be conveyed to as many as possible. जावेद साहब, आप ही ने कहा है कि translation is like transferring perfume from one bottle to another. कुछ खुशबू थोड़ी बहुत तो खो ही जाती है, कभी थोड़ी खोती है तो कभी बहुत खोती है. पर दूसरी तरफ ये भी है कि अगर हम ट्रांसलेशन को न करें तो उस ज़ुबान को न जानने वाले लोग उस दुनिया की इतनी उम्दा शायरी का लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे. सो वेयर इज़ द गोल्डन मीन? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, ये जो है pouring perfume from one bottle to another or one jar to another, I wish I had said it. It's a wonderful thing to say, लेकिन ये किसी और ने कही है. Shabana, perhaps you would know who had said this. I have heard it from her. So, it is definitely a very good example and good simile. मगर ये भी सच है कि अगर ट्रांसलेशन नहीं हो तो ज़रा आप सोचिए कि हम लोग कितने राइटर, हमको नहीं मालूम होता बाल्ज़ाक कौन है, हमें नहीं मालूम होता विक्टर ह्यूगो कौन है, हमें नहीं मालूम होता एमिल ज़ोला कौन है, अल्बर्टो मोरावियो कौन है, दोस्तोयेव्स्की कौन है, शोलोखोव कौन है, पुश्किन कौन है, गोर्की कौन है. कैन यू इमेजिन कि हमको ये पता ही नहीं होता, इसलिए जो तो कोई और लैंग्वेज थी और हम ये सोच के ट्रांसलेशन ना करते कि नहीं भाई वो जो ब्रदर्स कारामाज़ोव जो रशियन में आ रहा है वो इंग्लिश में कहाँ आएगा, तो बड़ा नुकसान हो जाता हमारा. तो ये सही है कि मे बी देयर इज़ सम लॉस, लेकिन और ट्रांसलेशन आसान काम नहीं है, पहले ये भी समझना चाहिए. इसलिए कि लैंग्वेज और द वर्ड इज़ नॉट जस्ट द मीनिंग इन द डिक्शनरी. A word is much more than that. It has its own history. It comes from a particular culture. It reminds you of certain traditions. It has its own nostalgia. The word, every word. अब आप उसको जब हिंदी से इंग्लिश में कर देंगे या इंग्लिश से बंगाली में कर देंगे या बंगाली से उर्दू में कर देंगे तो मीनिंग तो वर्ड का आ जाएगा, बाकी चीज़ें जो वर्ड के साथ थी वो कैसे आएंगी? वो तो नहीं आ सकती है, इसलिए कि ये वो वर्ड ही नहीं रहा, ये तो उसका ट्रांसलेशन है. अब ट्रेडिशन तो ट्रांसलेट नहीं होती ना साथ में, हिस्ट्री तो ट्रांसलेट नहीं हो जाती साथ में, लेकिन इसके मतलब ये है कि वर्बेटम ट्रांसलेशन कैन नॉट बी अ गुड ट्रांसलेशन. It has to, you have to be true to the original text, but at the same time an intelligent translator would know that कौन सा वर्ड जो है अगर मैं इस्तेमाल करूं तो it will evoke that feeling or that memory or that nostalgia which this word is doing. ये समझ उसमें होनी चाहिए. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि दोनों ज़बानें अगर आपको बहुत अच्छी तरह आती हों, जिससे आप ट्रांसलेट कर रहे हैं और जिसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो क्या कहना है. लेकिन अगर एक लैंग्वेज जिसमें आप कर रहे हैं उससे भी ठीक से जानते हैं तो भी शायद ये पॉसिबल होगा. एक्चुअली आई एम मेकिंग अ ग्राउंड फॉर माई सेल्फ, लेट मी टेल यू. ये केस मैं अपना आगे का मजबूत कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी हमने जो कल रिलीज़ होगा एक एल्बम है अनंत, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के 8 गीत हैं जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं सिंपल हिंदुस्तानी में, और टू द ट्यून. आई हैव बीन as loyal to the text as possible, और as possible क्या रही हूँ, लॉयली रहा हूँ उससे, और
जो जिस ट्यून में ओरिजिनल वो गीत है उसी ट्यून में उसे ट्रांसलेट किया। अब मुझे तो बंगाली आती नहीं है, तो मेरे साथ जो थी संगीता दत्ता, वो एक एक लाइन के मुझे मीनिंग ठीक से समझाती थी मैं, और हर वर्ड की डिटेल भी पूछता था। और जब मुझे ऐसा लगता था कि ना आई एम टोटली फेमिलियर विद दिस लाइन, देन आई यूज्ड टू राइट दैट। तो परहैप्स मे बी शी इज़ नॉट टेकिंग द क्रेडिट, बट इन अ वे तो उसने मुझे आधा काम तो आसान मेरा किया समझा के। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट इफ़ यू हैव समबडी हु कैन टेल यू what it means in a language which is a common language, then you can bring it in your own language. कल वो रिलीज़ है, आप ज़रूर सुनिएगा, देखिए आपको क्या लगता है कि इस हैंडीकैप के साथ while it in noble Bengali I translated it, whether I succeeded to some degree. जावेद साहब, आपने एक काबिल ट्रांसलेटर की खूबियाँ बताई हैं, पर कुछ कम उम्दा ट्रांसलेटर भी होते हैं जो ये मानते हैं कि बदनाम अगर होंगे तो नाम तो होगा। मुझे उनसे क्या लेना देना। पर प्लीज टेल अस that how do we avoid the pitfalls of that kind of translation? अब देखिए, दुनिया में whatever you do, some people do it with certain competence, some people don't do it with certain competence. Translation is no exception. दुनिया में हर काम अच्छा करने वाले और बुरा करने वाले दोनों मौजूद हैं। तो अब उसके बारे में यही क्या कहा जा सकता है कि let's hope that we meet people who have more competence and we read those people, we interact with those people who are competent. जावेद साहब, आपने कहा है कि बंगला न जानते हुए भी आपने गुरुदेव की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है। And Wilson, Howard Wilson, Horace Wilson, I'm sorry, who had translated Meghdut into English in 1813. I mean, he's a quintessential translator, the granddad of all of them. He had said that the beauty and the propriety of the thought must not be lost in translation. So, would you like to shed light on that? Let's say संगीता जी न होती तो भी यही प्रोसेस फॉलो करते, या कभी कुछ ऐसा लगा कि नहीं पकड़ पा रहा हूँ, शब्दों का अर्थ जान रहा हूँ बट उसके अंदर का जज्बा नहीं पकड़ पा रहा हूँ? अब पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि संगीता जी यहाँ है कि नहीं है। अब अगर हैं तो फिर अलग तरह बात करेंगे, और नहीं है तो अलग तरह बात करेंगे। है तो जरा हाथ उठा दीजिए संगीता जी। नहीं है जावेद साहब, आप कह सकते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में हाथ उठाएं, ये भी बात सही है। खैर, ये तो मजाक की बातें हुई। सच ये है कि हर जो एंडेवर है, हर प्रोसेस जो है, जो भी आप काम करने जाते हैं, ख़ासतौर से क्रिएटिव वर्क, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। किसी से आप पूछें जो पहाड़ से नदी चलती है वो सागर तक कैसे पहुंचती है, क्या उसका डायरेक्शन क्या रहता है, अब कैसे बताएं आपको। वो अपना रास्ता खुद ही बनाती है। अगर नदी के धारे में ताकत है तो पहुंच जाएगी वहाँ तक, लेकिन आप उसका जो रूट है वो चॉकआउट नहीं कर सकते। वो कहाँ से गुजर रही है, वहाँ का क्या टोपोग्राफी है, वहाँ क्या हर्डल्स हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह काम भी होते हैं। हर काम जो है मेरे ख्याल से, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, तो वो आप जब करने जाते हैं तो हर काम अपने कुछ प्रॉब्लम्स लेके आता है, अपने हैंडीकैप्स लेके आता है, और अपनी कुछ सहूलतें, कुछ कंफर्ट्स लेके आता है। तो वो कैसे हुआ, और अगर इनके साथ नहीं किया होता, किसी और के साथ किया होता तो कैसे होता। ज़िंदगी में ज़ाहिर है, देखिए ना, अभी आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं, आपकी जगह कोई और क्वेश्चन कर रहा होता तो कुछ और क्वेश्चन कर रहा होता। तो ये तो है ही है, और मेरी जगह कोई और होता तो कोई और जवाब दे रहा होता। तो ज़रा सी जहाँ चेंज आएगा तो चेंजेस तो आएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। जावेद साहब यहाँ बैठे हैं, आपके बारे में थोड़ी जल्दी से बात कर लें। खैराबादी ख़ानदान से हैं आप। आपके अब्बू जान निसार अख्तर साहब, आपके मामू जान द लेजेंडरी पोएट मजाज साहब, आई मीन कैफ़ी आज़मी साहब की छाँव के तले रहे हैं आप। How has the pressure been? How have you tackled it? कैसे दबाव को सहन किया? मैंने कभी कोई दबाव फील ही नहीं किया, तो सहन करने की क्या बात थी। वो दबाव जब आप फील करेंगे तो आप तो बड़े डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। You have to respect, admire those people who
are your seniors and they have done great work. मगर वो दबाव की क्या बात है? तो बड़े एडवांटेज की बात है कि आप उन्हें जानते हैं और आप I think I'm very extremely fortunate that I have spent time with these people. I have spoken to them about poetry, understood things, discussed with them. तो ये दबाव नहीं है, तो मेरा एक्चुअली एक एडवांटेज है बहुत से लोगों के ऊपर कि मैं इन लोगों को पर्सनली जानता था और मेरे पास ये मौका था कि मैं इनसे बात करूं. Why only them? जो 3 नाम लिए आपने तो वही हैं, और भी लोग, वो सरदार जाफरी हों, मजरू हों, कृष्णचंद्र हों, राइटर्स में इस्मत हों, इन लोगों से मैंने बहुत इनके साथ वक्त गुजारा है, इन्हें बचपन से जानता था. तो ये दबाव नहीं है, ये एक ग्रेट एडवांटेज है. दीज पीपल वर्क स्कूल्स फॉर मी. सो अब आप कोई हार्वर्ड हो के आया तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि हार्वर्ड का जो दबाव था तो आपका क्या हाल हुआ उसमें. भाई ये तो फ़ायदा हुआ मुझे. तो सही फरमाया आपने. ये बताइए जावेद साहब, कुछ कह रही हैं? नहीं, मुझे लगा जैसे ये वैलिडेशन चाह रहे थे आपसे अपने जवाब का. वो तो मैं हमेशा ही चाहता हूँ. बस ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. जावेद साहब, आपकी शायरी में समाज की ज़िंदगी की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठी है. दर्द भी है और हिम्मत भी है. कुछ तो ये शायद आपकी मुफलिसी की सौगात रही होगी, पर कुछ हो सकता है. कैन यू जस्ट टेल अस इन ब्रीफ दर्द और शायरी का रिश्ता, हाउ डू यू सी इट? देखिए, आप क्रिएटिव होते क्यों हैं? कोई भी काम, आप पोएम लिख रहे हैं, आप पेंटिंग बना रहे हैं, आप शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, द वर्ड क्रिएटिव और डिज़ायर टू बी क्रिएटिव इज, टू मी, my common sense tells me that it is based on some kind of belief that things are not perfect and there should be something more. अगर आप ज़िंदगी से बिल्कुल satisfied हैं, everything is hunky dory, why would you like to create something? There is no need. Creativity की desire ही जो है वो sense of incompletion either within you or around you है, कि कोई चीज़ है जो कम है, ज़रा और कुछ होना चाहिए. ये डिज़ायर ही आप पे तब आएगी कि जब अपने प्रेजेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं. और अगर इस तरह की आप पे सेंसिटिविटी है तो द फर्स्ट थिंग यू विल रिसीव इज़ हर्ट एंड सॉरो. इफ़ यू हैव शार्प एंटेनास, तो जो खबर हेडलाइंस में आ रही है ज़िंदगी में, सबसे पहले तो वही मिलेगी ना आपको. I'm afraid there is so much of injustice, so much of deprivation, so much of exploitation in this world that if your antennas are sharp enough to receive what is happening around you, that will be the first message. And if it is absent in you, as a writer, as a poet, as a short story writer, novelist, so something is wrong with the antennas. No, sorry for interrupting, but then what do you say when beauty can also inspire creativity, when goodness can also inspire creativity? How can you say that it's only a sense of being incomplete that inspires creativity? In so many instances, it's sheer beauty of a thought or of an experience or of a place that can also inspire creativity. No, I totally agree with you. But the fact remains that if you get into poetry all over the world, whether English poetry or French poetry or Latin poetry or South African poetry or Arabic poetry or Indian poetry or Bengali poetry or any poetry, predominantly there is melancholy, there is pining, there is sense of deprivation. बाकी खुशी की भी है. जब ज़्यादा खुश रहता आदमी तो शायरी क्यों करेगा, उससे अच्छे काम है उसके पास करने को. लेकिन जो शायरी में, पोइट्री में पर्टिकुलरली, आई वोंट से दैट अबाउट पेंटिंग परहैप्स, बट बिकॉज ये पेंटिंग में एग्नी और पेन और डिप्रिवेशन का डिपिक्शन जो है वो बहुत लेटर स्टेज पे आया है. लेकिन पोइट्री में दर्द का एहसास ये इनहेरेंट है और प्रीडोमिनेंट है. खुशी के गाने भी लिखे गए हैं और जोश के गीत भी लिखे गए हैं और तरह तरह की पोइट्री हुई है. लेकिन जो पहला और प्रीडोमिनेंट कलर है इस कोलाज का, वो दर्द ही है. रोमांस?
ये मेरा पर्सनल दर्द है जो मैं अब सब लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास हमेशा ऐसा होता है कि झुंड की झुंड young girls come running to me and say, your husband writes such romantic songs. It must be so beautiful because he must be so romantic in real life. And I tell them, he has not a single romantic bone in his body. So this question comes from that urge from within me. Yeah. When Shabana Ghar Ka Bhedi, she told this to a journalist that she was taken aback and she looked at me, the journalist, and said, is it true that in personal life you are not romantic? तो मैंने आपको क्या लगता है सर्कस में जो ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं घर में उल्टे लटके रहते हैं? बहुत खूब जावेद साहब, बहुत खूब। अब आप ये बताइए कि फेस्टिवल दर फेस्टिवल यूँ मुसलसल चलते जा रहे हैं आप, तो अपने च्यवनप्राश का राज तो बताइए, ये सच सच बताइएगा जनाब। अब ये च्यवनप्राश पूरा सामने बैठा तो है, और कुछ भी बताइए। यही है जो एप्रिसिएशन है, जो कनेक्शन है लोगों से, when you feel that what you have written, what you have said, when you are alone in a room and writing at your table, sharing with so many people and they are reacting to it, इससे ज़्यादा क्या आपको एनर्जी मिल सकती है किसी चीज़ से? Well, ladies and gentlemen, let's now invite Shabana ji and Javed Saab to recite, read out from some of the chosen poetry from the new book, in other words. Javed Saab will recite the original, I'll only recite the translation. Fair enough, okay. Yeah, here is a book very aptly titled, I wish I had thought of this title, in other words. Now, ट्रांसलेशन के लिए इससे अच्छा मेरे ख्याल से नहीं टाइटल हो सकता, बुक दैट इज ट्रांसलेटेड इन अदर वर्ड्स. सो दीज आर द पोएम फ्रॉम टू ऑफ माय कलेक्शंस, तरकश एंड द अदर वन लावा. दे आर ओनली पोएम्स, नॉट गज़ल्स. परहैप्स गज़ल इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर ट्रांसलेशन. सो these poems are translated by Dr. David Matthews, who is in University of London, and Hussain Ali Mir. He is a scholar based in New York. He also teaches history. Shall I translate? I'll start with a poem. The title is वो कमरा याद आता है. And then Shabana will read the translation done by these gentlemen. मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबां कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम. वो कमरा याद आता है. दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाज़ा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में चाहत के समंदर को छुपाए हो. वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी. वो एक गुस्ताख मुंहफट आईना जो दिल का अच्छा था. वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी. वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था. दरीचा या ज़हानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल
कोई सब सरगोशी, किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतज़िर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने, नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नरम दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेजा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। ये ज़बान इतनी आसान है. Do you need me to read the English translation? Yes? No. There are lots of people who are saying no and some are saying yes. How many for no? Overwhelmingly. Let Javed Sahab decide. No, yes, you have to. Yeah. I remember that room. Whenever I was scorched by the burning sun of life, whenever I grew tired of my own lies and the lies of others, fighting with everyone, losing against myself, I used to go into that room. That one room with its colors of burnt sienna, that room, kind beyond all bounds, which used to tuck me up in its soft sleep as a mother might hide a child in the folds of her dress, scolding with love. No, what a way to go on, wandering about in the midday sun. I remember that room. That heavy, solid wooden door, hard to pull open, as if a stern father in his rugged breast had hidden an ocean of tenderness. That chair with its twin sister, both of them were my friends. That insolent, loud-mouthed mirror, which had a kind heart. That clumsy wardrobe standing in the corner, like an old nurse, would reprove the mirror. The flower vase, quite tiny, very naughty, laughing at them both. The window, or a knowing smile, and the creeper bending over the casement, some green whisper. Books in the alcoves or on the shelf sat like some serious school mom, but they waited for me to ask them something. Pillows, companions of slumber, remedy for tiredness, that soft-hearted bolster in whose lap I would rest my head and gaze at the ceiling in the rafters of the roof. No one knows how many tales were begun. Over the little table, on the fancy wall, hanging pictures used to look at me with affection and trust. They smiled, never dreaming that one day I would leave like this. One day I would depart, never to return. The house where I live now is very beautiful, but often I sit here in silence and remember that room would talk to me. Thank you. ये खेल क्या है? In this poem, the metaphor is of chess, but obviously one is saying some other thing. मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या? न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या?
मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो, वजीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है? ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस ना जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है? मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है? अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है? मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। कभी कभी क्या होता है, पीपल हु आर फेमिलियर विद ओनली माई फिल्म सॉन्ग्स and they listen to these poems, they get a kind of a cultural shock. Then they ask me, sometimes they just can't resist asking me, रोमांटिक पोइट्री नहीं करते हैं? तो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ करता हूँ, फ्री में नहीं करता हूँ। तो लेकिन खैर कुछ फ्री में भी की है, नॉट ओनली दैट कि फ्री में की है बट आई हैव पेड फॉर इट। छोटी सी नज़्म है। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है क्या कहूँ, कमबख्त भुला सका न ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। एक और पोएम है, इसका तो ट्रांसलेशन मैं ज़रूर चाहूँगा कि शबाना पढ़े। आसार कदीमा, देखो टाइटल ही ऐसा है कि यहीं से ट्रांसलेशन शुरू हो जाना चाहिए। शबाना कह रही है थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दो, तो अब सारी बातें थोड़ी बता दूंगा जी। एक पत्थर की अधूरी मूरत, चंद तांबे के पुराने सिक्के, काली चांदी के अजब से जेवर और कुछ कांसे के टूटे बर्तन, एक सहरा में मिले जेरे जमीन। लोग कहते हैं कि सदियों पहले आज सहरा है जहां कभी एक शहर हुआ करता था। और मुझको ये ख्याल आता है किसी तकरीब किसी महफिल में सामना तुझसे मेरा आज भी हो जाता है। एक लम्हे को बस एक पल के लिए जिस्म की आँच, उचटती सी नज़र, सुर्ख बिंदिया की दमक, सरसराहट तेरे मलबूस की बालों की महक, बेख्याली में कभी लम्स का नन्हा सा फूल, और फिर दूर तक वही सहरा के जहाँ
कभी एक शहर हुआ करता था। This is relics or remains of the past. It's about excavating a site and finding under the earth an entire city in glimpses. A half-preserved stone statue, a few old copper coins, mysterious jewels of blackened silver, some broken plates of brass were found in a desert under the ground. People say that centuries ago, where the desert stands today, there used to be a city. And I imagine that on some festive occasion, in some assembly, I come face to face with you even today, for a moment, just for a second, the fire of your body, a fleeting glance, the rustle of your clothes, the perfume of your hair, sometimes in carelessness, the delicate flower of your touch, and once more, that rolling desert, that desert where once upon a time a city stood. Thank you. आंसू सुनो। आंसू किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का? ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का? ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिलदोज़ दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था, वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, एक्सपीडियंसी के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू, न मोतबर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना, तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता। ये मेरी पलकों तक आ गया है। Teardrop. Upon hearing about someone's sorrow, a teardrop has appeared on my eyelashes. What is this tear? Does this tear bear witness to my compassion, my love for humanity? Is this tear proof
of the light of selflessness in my life? Does this tear demonstrate that a sensitive heart beats in my chest, which upon hearing another's heart-rending tale has been moved and is burning in the flames of another's pain, melting in them? But then I ask myself, I've only just heard this tale. Has this teardrop too only just formed? Should I assume that this tear didn't exist before now? I suspect that it was there, somewhere in the distance, between my heart and I, where entire cities of feelings flourish, where dreams lie buried, where the blighted gardens of love nurture thorny trees of bitterness and nothing else, and beyond which lie dense forests of anxiety. This teardrop had probably been lurking there for several days. The grief that had birthed it long been murdered at the hands of expediency, with no one to be proud of, its legitimacy endowed, fatherless, motherless, unable to command any respect, unfamiliar with the paths. This tear had stopped in its tracks, hesitant, scared. Today, when a caravan of someone's sorrowful tale passed by this way, the orphaned tear hoped that if it could secure this tale's patronage, then it might be possible to find its way out. And so, clutching the story's finger, claiming its sadness, asking it random questions about itself, it has made its way to my eyelashes. वक्त, ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है? जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाक़ई, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो के वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो के माहौल की, ये ज़हन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं, वो फिक्र में आए ज़लज़ले हों के दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अबे ओझल दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है? किन पहाड़ों से आ रहा है? ये किस समंदर को जा रहा है? ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो? इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, ना कोई आइंदा ना गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच्चे हो के सफ़र में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा, गुजरता है या थमा हुआ, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है कि वक्त क्या है? देखिए, आमतौर से मैं आखिरी पोएम वक्त ही सुना देता हूँ, लेकिन आज मैं एक काम कर रहा हूँ और हमेशा ज़बानी ही सुनाता हूँ चीज़ें, लेकिन आज मैं एक
एक पोएम आपको और सुनाना चाहता हूँ, और क्योंकि मैंने आज तक पब्लिकली नहीं सुनाई है इसलिए मुझे आपको पढ़ के सुनानी पड़ेगी. This is the first time I am reading a poem afterward, and this is the first time I am reading this poem publicly. पोएम का टाइटल है शबाना. अब किसके बारे में लिखा है ये नहीं बताऊँ. हाँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी है. सही बात है, लोगों को मालूम होना चाहिए. ज़रा यूजुअली है, हम लोग जो है मतलब बोथ ऑफ अस लिव आउट ऑफ सूटकेसेस. तो कभी मतलब दोनों का ये हाल है कि आँख सुबह खुलती है अक्सर. मुझे तो याद है मैं कौन से शहर में हूँ, और यही शबाना के साथ भी होता है. हम लोग कई बार एयरपोर्ट पे मिले हैं कि मैं एक जगह से आके दूसरी जगह जा रहा था, शबाना पहली जगह से तीसरी जगह जा रही थी, तो मुझे एयरपोर्ट पे कुछ कपड़े और दे दिए. अच्छा ये तुम ये ले जाओ साथ में, वहाँ सर्दी होती है. तो ये एयरपोर्ट पे भी हमने ऐसे काम किए हैं. तो एक सुबह आँख खुली तो शबाना नहीं कहाँ गई हैं जी, वो मैडम तो दिल्ली चली गई हैं. अच्छा हाँ हाँ वो तो जाने वाली थी. तो कुछ सब ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है. मैं इस पे ये कविता है, ये मैं पहली बार पब्लिकली पढ़ रहा हूँ. ये आए दिन के हंगामे, ये जब देखो सफ़र करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसे मिलना उसे मिलना. हमारे सारे लम्हे ऐसे लगते हैं कि जैसे ट्रेन के चलने से पहले रेलवे स्टेशनों पर अपने अपने डब्बे ढूंढते कोई मुसाफिर हो, जिन्हें कब सांस भी लेने की मोहलत है. कभी लगता है तुमको मुझसे, मुझको तुमसे मिलने का ख्याल आए, कहाँ इतनी भी फुर्सत. मगर जब संग दिल दुनिया मेरा दिल तोड़ती है तो, कोई उम्मीद चलते चलते जब मुंह मोड़ती है तो, कभी कोई खुशी का फूल जब इस दिल में खिलता है, कभी जब मुझको अपने जहन से कोई ख्याल इनाम मिलता है, कभी जब एक तमन्ना पूरी होने से ये दिल खाली सा होता है, कभी जब दर्द आके पलकों पे मोती पिरोता है, तो ये एहसास होता है खुशी हो, गम हो, हैरत हो, कोई जज्बा हो, उसमें जब कहीं एक मोड़ आए तो वहाँ पल भर को सारी दुनिया पीछे छूट जाती है. वहाँ पल भर को इस कठपुतली जैसी जिंदगी की डोरी डोरी टूट जाती है. मुझे उस मोड़ पर बस एक तुम्हारी ही ज़रूरत है. मगर ये ज़िंदगी की खूबसूरत एक हकीकत है कि मेरी राह में जब ऐसा कोई मोड़ आया है तो हर उस मोड़ पर मैंने तुम्हें हमराह पाया है. Okay. Listen, this is hoodwinking. This is, in 2000 poems, there are 3 which are romantic, okay? Don't get carried away. Okay, ladies and gentlemen, we now invite questions, short questions, precise, very, yes, please, there's a gentleman there. उससे पहले के पहला सवालों में एक छोटा सा एनेक्डोट सुनाना चाहता हूँ. एक साहब थे, वो सुबह से शाम तक मंदिर में बस पड़े रहते थे और गिड़गिड़ाते रहते थे, और अल्टीमेटली शिव जी को तरस आ ही गया और प्रकट हुए और कह ले भाई तू मेरा इतना बड़ा भगत है, क्या चाहिए तुझे? कह ले बस भगवान कुछ ऐसा मुझे दे दीजिए कि मेरी बीवी मान जाए मुझे. कह ले किस बात से? कह ले मुझे उड़ना आ जाए. तो तब तो मानेगी. तो कह ले जाओ आज से तुम उड़ोगे. तो वो तो शिव जी तो चले गए और ये जो हुआ तो वाकई उड़ने लगा. तो ये सीधा अपने घर में गया. बीवी जो थी आंगन में कुछ काम कर रही थी, ऊपर से उड़ता हुआ निकला तो बीवी ने चीख मार के घर के अंदर भाग गया कि कोई उड़ता हुआ. तो नीचे उसने लैंड किया, अंदर गया, मुस्कुराया, कैसे डर गई? अरे मैं डर गई, एक आदमी उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा. पहले वो मैं ही था. तुम थे? अरे वही तो मैं कहूँ, टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है? क्या बात है जावेद साहब, क्या बात है. चित्त भी आपकी और पट भी आपकी, हमेशा ही आपकी होती है ना. हाँ, वो एक जनाब सवाल, उनका हाथ उठाए प्लीज. आदाब नाज़रीन,
तमाम नामानिगारों के जानिब से हम कलकत्ते में शबाना जी और जावेद साहब का खैर मकदम करते हैं। हमारा सवाल आपसे तर्जुमे को लेकर है, जो पेशकश हमें कल नज़र आएगी अनंत, या बंगला तलफ़ुज़ में अगर कहें अनंतो, तो क्या उसका बीज तब बोया गया था जब आपने बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म के लिए तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा लिखा था, जो कि एकला चौलोरे का एक तरह से जज्बाती तर्जुमा था, लफ्जी तर्जुमा नहीं था, तो क्या इसका बीज तब बोया गया था? अब कह नहीं सकते। देखिए, सच बात यह है कि टैगोर एक ऐसे शायर हैं कि उनका असर और उनका इन्फ्लुएंस तो अक्रॉस लैंग्वेजेस है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बंगाली में है। और आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि वो जो गीत मैंने लिखा तो उसमें कहीं मेरे दिमाग में पीछे अकला चलो कि एको थी। लेकिन ये काम जो मैंने अभी किया है ये एक बार मैं पहले भी कर चुका हूँ। यही संगीता दत्ता, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी इंग्लिश में जिसमें उन्होंने कुछ गीत रविंद्र संगीत से इस्तेमाल किए थे, और उसमें एक दो उन्होंने फिर हिंदी में भी उनको मुझसे कहा था ट्रांसलेट करने को। और जब वो हमने किया उस फिल्म के लिए तो हम लोगों को ऐसा अंदाज़ा हुआ कि ये काम किया जा सकता है। और जिन लोगों ने सुना, शर्मिला जी ने, दूसरे लोगों ने जिन्होंने वो गीत सुने बिकॉज शी वॉज इन दैट फिल्म, तो they encourage me that you should go about it and make an album, और ज़्यादा और गीत करो। तो अब अगर वो लोग जो बंगाली लिटरेचर जानते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर की शायरी से बंगाली में परिचित हैं, उन्होंने जब मुझे इतना पॉजिटिव रिएक्शन दिया तो मुझे हिम्मत हुई। Young lady here in the second row, please. 2 साल पहले आपको जयपुर लिटरेचर फेस्ट में सुना था और आपने कहा था कि बहुत लोग प्यार करते हैं, उर्दू से कोई मोहब्बत नहीं करता। तो मैंने उसके बाद उर्दू सीखना शुरू की। It is just because of the two of you and it's a absolute honor to stand and hear you all. मुझे एक चीज़ पूछनी थी, अगर उर्दू की शायरी गज़ल सीखना चाहें, हम लोग अभी शुरुआत ही हुई है, तो कौन सी गज़लें, कौन सी नज़्म लें जैसे कि people who are not from an Urdu background can also understand but not get lost in translation? मुझे लगता है कि जब हम लोग कोई चीज़ सीख बैठ जाइए, हम लोग जो कुछ सीख रहे हैं ना, तो उसमें एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, बोर होने के लिए। इसलिए कि सीखना जो है वो इंटरेस्टिंग प्रोसेस नहीं है, वो बोरिंग है। It makes you feel incompetent, it makes you feel helpless, it makes you feel that perhaps you don't have enough understanding. All of us, वो जो हमारे सीखने का प्रोसेस है वो पेनफुल होता है। तो वो आपके साथ भी होगा, वो मेरे साथ भी होता है जब मैं कुछ सीख रहा हूँ, हम हर एक के साथ होता है। लेकिन वो ह्यूमिलिटी हमें रखनी पड़ती है कि बहुत सारी चीज़ें हम ठीक से अभी नहीं समझ पा रहे, सीख लेंगे। और इनडिस्क्रीटली पढ़िए, इतना पढ़िए जितना आप पढ़ सकें। मैं आपसे नहीं कहूँगा ये पढ़िए और वो मत पढ़िए, आप जो हाथ लगे पढ़ जाइए। जितना आप लिटरेचर पढ़ेंगी और जितनी पोइट्री आप पढ़ेंगी, हर तरह की, मॉडर्न जो पोइट है आजकल के उन्हें पढ़िए, जो 50s, 60s, 40s में थे प्रोग्रेसिव राइटर्स, उन्हें ज़रूर पढ़िए। जो प्रोग्रेसिव पोइट्स हैं, जो मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और जो क्लासिकल हैं, उनमें कहीं आपको ज़रा मुश्किल पड़ेगी, इसलिए कि कुछ की लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। जैसे गालिब है वेरी डिफ़िकल्ट मेटाफर, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरे शायर जैसे मीर है, जैसे दाग है, ये क्लासिकल पोइट्स हैं, ये आपको कंपैरेटिवली ज़बान उनकी ज़्यादा आसान लगेगी। तो आप ये होता क्या है, द मोमेंट यू से उर्दू पोइट्री, पहला नाम जो आपके माइंड में आता है गालिब आता है, बट गालिब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवन फॉर दोज हु हैव बीन, जिनकी मदर टंग भी उर्दू है और उर्दू लिटरेचर पढ़ते हैं, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। इट्स लाइक पहले दिन मैं अंग्रेज़ी सीख के शेक्सपियर पढ़ने लगूँ तो वो डिफ़िकल्ट होगा। एक तो पुरानी ज़बान थोड़ी है, फिर कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इन लोगों को पढ़िए और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको फ़ायदा है। और थोड़ी बोर भी होइए, नहीं भी समझ में आए फिर भी पढ़िए। There's a hand here, but I don't know how the mic will reach there, or there are hands there too. So do we just have one? Why don't you, excuse me please, why don't you go back there, because you won't be able to reach there so soon or so. Yeah, yes please. Hello sir. I would like to ask you about creativity. You said that melancholy, pathos and distraught, all these things
you know, are origins of creativity in a particular being. So just like to ask you one thing, sir. How far do you believe that one has to go through these in particular, as to one has to have a particular miserable life that he has gone through to be at the epoch and to be at the peak of his creativity? Because I've seen people like Dostoevsky, Kafka, they had a very troubled life, and it is those reflections that we see in their writing. So how far do you believe is that correct or incorrect, sir? There are examples on either side. I mean, if you say troubled life, हमारे यहाँ तो troubled life की definition एक है, we are economically deprived. भाई अगर घर नहीं है ठीक, आपके पास 2 वक्त की रोटी का प्रॉब्लम होता है, अगर आप बच्चे की फीस नहीं दे सकते, राशन नहीं खरीद सकते, तो आप ट्रबल में हैं। और अगर ये चीज़ें हैं आपके पास तो फिर आप ट्रबल में नहीं माना जाता है, तो आप तो ठीक हैं, फिर तो सब मिल रहा है आपको। ट्रबल तरह तरह के होते हैं, तो इकोनॉमिक ट्रबल होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए, और ट्रबल कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका अपने बारे में हो। Obviously, if you are seeing things which are around you and they are troubling you, that is also there. So there are all kind of examples. A man like Tolstoy was a very rich man, and he was doing extremely well for himself. He was from landed gentry of Russia. और वो भी लिखता था। ऐसे फैज़ अहमद फैज़ was a great poet, और फिराक a great poet. I don't think they have seen. अरे भाई इतनी दूर जाने की ज़रूरत है? यहाँ पर आप जो who is the god of literature here, Rabindranath Tagore, आप उन्हें देखिए, तो that way his life was not troubled. He had a privileged life, but he was troubled because he was a sensitive person. जलियाना वाला बाग troubled him. उनको ये trouble नहीं था कि मेरी जिंदगी में क्या problem आ रहे हैं। तो trouble की भी definition क्या है, क्या आपको तय करना पड़ेगा। Sir, why you are not coming the film making? Who's asked that question, please? शक्ल दिखाएं अपनी, एक टूटे दारन है, दारन पेश, ठीक है। अब why? What was your question, please? आबार बोलूं? First of all, a lady is standing there and a male voice is coming, which is quite frightening. Yes. Can I ask you now, or the lady will tell you the question? Very, very quickly. We've got another lady waiting. Why are you not coming to the film making? You are a versatile person. That is my question. Your question is that why did I go to film industry? Why are you not making films now? That's now, okay. Is there any plan for making films? Right. Yes. I have been writing lyrics for quite some time because that was more convenient. The difference between writing a script and a song is like marathon race and 100 yards. So 100 yards में जल्दी खत्म हो जाता है किस्सा, और मैराथन में you have to run for 46 miles. So that is why it was a matter of convenience that, and I was getting appreciated. People were liking the song. तो हमने चलो ठीक है, अच्छा है, turnover ज़्यादा है. तो but now I am feeling this sense of loss that it is a long gap that I have not written script, and I have finished the script, and I promise you that within a couple of months it will be announced. जावेद साहब, मोहतरमा यहाँ खड़ी हैं काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब और मोहतरमा शबाना आज़मी। मेरा एक ही सवाल है उर्दू ज़बान के मुस्तक़बिल के बारे में, क्योंकि हमारी ज़बान है ये, और बचपन से हम यहाँ पे परवरिश पाए, अभी बाहर रहते मगरिबी दुनिया में, और हमें बहुत फ़िक्र है ये ज़बान की भी। तो आप अगर चंद लफ्ज़ों में कुछ कह सकें। वी आर रियली वरीड अबाउट सम ऑफ अस। इनको उर्दू की फ़िक्र है और मेरी बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो इनकी फ़िक्र है बिल्कुल जायज़ है, और एक वक्त था जब उर्दू की फ़िक्र की जाती थी। अब तो ये हालात हो गए कि हमें हर इंडिजिनस लैंग्वेज की फ़िक्र करनी पड़ेगी। समथिंग इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू इन वेस्ट बंगाल, but in rest of the country I can tell you what is happening. That ultimately language, literature, poetry, they are nurtured by the middle class, upper middle class, because the poor class doesn't have time most of the time, or the facility to spend energy or time or sources on these
things, and the ultimate affluent has no time for these things. They have better pleasures. ये हमेशा by and large, I mean exceptions are always there on all the sides, but by and large literature is nurtured and created by the middle class. What is happening in our country because of economic pressures and this so-called global village, that middle class, and understandably so, is sending their children to English medium schools. And this language has been left only for the slums or the poorest of poor, the vernacular language, where the child learns the language, but obviously it doesn't have time. After the 10th, maybe he will not even go further in his studies and pull a rickshaw or do something, that kind of a menial job. तो जिन लोगों को ये लैंग्वेज को फ्लरिश करना था, सही बनाना था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. There is no patronage. The younger generation cannot even write in North India, cannot even, most of them from upper class, middle class, they can't even write Hindi, leave aside Urdu, which is supposedly the natural language. और वो आज जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो यंग डायरेक्टर्स, यंग राइटर्स हैं, दे आर राइटिंग देयर डायलॉग एंड स्क्रिप्ट्स इन रोमन. तो लैंग्वेज का लॉस टोटल है. बट आई मस्ट से, आफ्टर सेइंग दिस, दैट ऑल द लैंग्वेजेस आर इन डेंजर. उनका जो कल्चरल हेरिटेज है वो डेंजर में है, उस पर क्वेश्चन मार्क है. उर्दू का खास तौर से हुआ है, बिकॉज उर्दू इज अ स्पेशल केस. बहुत लंबी हिस्ट्री है, शायद इस वक्त टाइम नहीं उसके बारे में, उसका तो अपना एक पूरा सेशन कर सकते हैं हम उर्दू के बारे में. लेकिन उर्दू के बारे में एक झूठ बोला गया था आज से 100 साल पहले, और जिसकी प्राइस उर्दू ने, बेचारी उर्दू ने दी, उसकी कोई गलती नहीं थी. और झूठ ये था जो कुछ फंडामेंटलिस्ट ने ऑन आइदर साइड बोला था. इसमें कुछ उर्दू पढ़ने और लिखने वाले फंडामेंटलिस्ट भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज मुस्लिम्स की है. हमें इससे ज़्यादा एब्सर्ड बात नहीं हो सकती. लैंग्वेज कहीं रिलीजन्स की होती है. लैंग्वेजेस बिलोंग टू रीजन. फ्रेंच इज फ्रॉम फ्रांस, जर्मन इज फ्रॉम जर्मनी, रशियन इज फ्रॉम रशिया, पंजाबी इज फ्रॉम पंजाब, बंगाली इज फ्रॉम बंगाल. How can a language be of a religion? ये एक झूठ बोला गया था because they wanted to justify two nation theory, जिसने इस मुल्क का पार्टीशन करवाया है. अब वो क्या होता है कि ये दोनों फंडामेंटलिस्ट और दोनों एक्सट्रीमिस्ट ने अपने अपने वर्जन हिस्ट्री के बना लिए. ज़मीन जो थी वो भी बांट ली. But how do you divide a language? You can't say that you keep the verbs and I'll keep the nouns. So it had to be pushed one way. Fact ये है कि in 1798, as late as 78, 213 years ago, a gentleman called Shah Abdul Qadir dared to translate Quran in Urdu 200 years back. And all the fundamentalists, all the mullahs of that time gave a fatwa against him. That how dare he translate Quran in this heathen language? And within 100 years, that heathen language became Muslim. As a matter of fact, if you read Urdu, and if you read like a young friend who is learning Urdu, if she reads that, she will know, and anybody would know, that Urdu is one language which was right from the word go, from the first day, anti-fundamentalism, anti-superstition, agnostic, sometimes atheistic. Poets who have written poetry 300 years ago, they have written against almost all the religious beliefs. Leave aside communal thought or reactionary thought. ये लैंग्वेज को ये इसकी सलीब पे चढ़ा दिया गया, इस क्रॉस के ऊपर लटका दिया है, मगर इसमें कुछ उर्दू पढ़ने वालों का भी हाथ है और कुछ उनका भी हाथ है जो उर्दू नहीं जानते. जावेद साहब, शबाना जी, कैसे आपका शुक्रिया कहें. कलकत्ते वाले हम सब इनको यूँ सलाम करते हैं, आपके फ़न को, आपके हुनर को, कि जैसे राग के हर हर्फ से ये आस का उन्वान करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.